نعمتیں بانٹتا جسمیتی وہ ذیشان گیا اور نعمتیں بانٹتا جسمیتی وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا اور نعمتیں بانٹتا جسمیتی وہ ذیشان گیا اور ساتھ ہی منشی رحمتی کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمتی کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی اور یہ بھی شعر سماعت فرمائے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت واقعی ایک سچے پکے عاشق رسول تھے جن کی زبان اور جن کا دل ایک تھا دل میں وہی بات تھی جو زبان پہ تھی اور جو زبان پہ تھی وہی دل میں تھا اللہ اکبر وہی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسا نہیں کہ زبان پہ کچھ ہو دل میں کچھ ہو تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں ملاحظہ فرمائیں ارلے خبر چلے دیکھی ارلے خبر چلے دیکھی غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلدی کی لے خبر جلدی کی غیروں کی طرف دھیان گیا اور میرے آقا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا میرے آقا اور ایک شعر اور سماعت کر لیں بہت عمدہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں ملاحظہ فرمائیں زندہ باد ارے انہیں جانا انہیں اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول خوش ہو جائیں اللہ خوش ہو جائے کیا کہنا اللہ کا رسول خوش ہو جائے کون ناراض ہوتا ہے کون ناخوش ہوتا ہے کون روٹتا ہے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے بس اللہ کا نبی خوش ہو جائے اللہ کا رسول خوش ہو جائے اللہ کا محبوب خوش ہو جائے خدا کی قسم اگر اللہ کا محبوب خوش ہو گیا اللہ کا نبی خوش ہو گیا تو دنیا میں بھی کامیابی ہے آخرت میں بھی کامیابی ہے آج کچھ لوگ کہتے ہیں کیا اعلیٰ حضرت کرتے رہتے ہو کیا اعلیٰ حضرت کا نام ہر وقت لیتے رہتے ہو ارے میں کہتا ہوں آدمی کا کام بولتا ہے آدمی کا کام بولتا ہے نام سے کام نہیں ہوتا ہے بلکہ کام سے نام ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کی اگر ذات کو سمجھنا ہے تو آؤ میں آپ کو بتاؤں آج کے دور میں زیادہ دور آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے اعلیٰ حضرت وہ ذات ہے جنہوں نے ناموں سے رسالت پہ پہرا دیا ہے اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہے جس نے نبی کی عظمت کو اجاگر کیا ہے اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہے جس نے نبی کی محبت کی شمع لوگوں کے دلوں میں جگائی ہے آج کے دور میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو حضرات ذرا غور کر لو جو نبی کی بات کرتا ہے جو نبی کی عظمت کا گون گاتا ہے جو نبی کی عظمت کے ترانے گاتا ہے جو نبی کا پرچم لے کر کے چلتا ہے نبی اسے عزتیں عطا کر دیا کرتے ہیں نبی اس کو اتنا اونچا کر دیا کرتے ہیں اب دنیا کی
पूरी ताकत मिल करके अगर उसको नीचा करना चाहे तो उसको नीचा नहीं कर सकती है। अरे आओ तारीख उठा करके देखो, अबू बकर सिद्दीक को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया, बताओ कोई नीचा कर सकता है? उमर इब्ने खत्ताब को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया, बताओ कोई नीचा कर सकता है? हजरत उस्मान गनी को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया है, बताओ कोई नीचा कर सकता है? मौलाए कायनात को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया है, बताओ कोई नीचा कर सकता है? अशरे मुबशरा को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया है, बताओ कोई नीचा कर सकता है? करबला के शोहदा को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया है, कोई नीचा कर सकता है? आओ देखो, इमाम आदम को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया है, कोई नीचा नहीं कर सकता है। इमाम शाफई को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया है, कोई नीचा नहीं कर सकता है। इमाम मालिक को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया है, कोई नीचा नहीं कर सकता है। इमाम अहमद इब्ने हंबल को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया है, कोई नीचा नहीं कर सकता है। अरे आओ आगे बढ़ो, गौसे आदम को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया है, कोई नीचा नहीं कर सकता है। गरीब नवाब को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया है, कोई नीचा नहीं कर सकता है। ओ ऐसे करनी को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया है, कोई नीचा नहीं कर सकता है। आओ जरा देखो, मसूद गाजी को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया है, कोई नीचा नहीं कर सकता है। हजरत आला हजरत इमाम अहमद रजा को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया है, कोई नीचा नहीं कर सकता है। मुफ्ती आजम को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया है, कोई नीचा नहीं कर सकता है। शेरे बेशे सुन्नत को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया है, कोई नीचा नहीं कर सकता है। हाफिज़े मिल्लत को, मुजाहिदे मिल्लत को, और आओ आकर के देखो मेरे ताजुश शरिया को मुस्तफा ने ऊंचा कर दिया है। अब पूरी दुनिया की ताकत मिल करके अगर ताजुश शरिया को नीचा करना चाहे तो नीचा नहीं कर सकती है। क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। मेरे दोस्तों, ये नबी की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत दिल में आपने बसाई, उसका ये समरा, नबी की मोहब्बत की शमा लोगों के दिलों में जलाई, उसका ये समरा नामों से रसालत पर पहरा दिया, उसका ये समरा अदीज़ान मिल्लत इस्लामिया। आओ बताता चलूं नबी की मोहब्बत क्या है, नबी का प्यार क्या है, नबी का इश्क क्या है। अल्लाहु अकबर। एक सहाबी रसूल थे जिनका नाम था अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु। मदीना शरीफ में जिनके घर पे मुस्तफा ने क़याम फरमाया था, और ये ऐसे सहाबी थे, अल्लाहु अकबर, जिस घर में मुस्तफा ने क़याम फरमाया था। आओ जरा देखो, मेरे आका अलैहि तहियत व सलाम जब मक्का छोड़ करके मदीना शरीफ जाने की तैयारी कर रहे हैं, मदीने शरीफ के लोगों को मालूम होता है रसूल अल्लाह मक्का शरीफ से मदीना तशरीफ लाने वाले हैं, आमिना के लाल मदीना तशरीफ लाने वाले हैं, तारे कायनात मदीना तशरीफ लाने वाले हैं, ताहा यासीन मदीना तशरीफ लाने वाले हैं। हजरात, मदीने की गलियों को सजाया जा रहा है, मोहल्ले को सजाया जा रहा है, आबादी को सजाया जा रहा है, मकानात को सजाया जा रहा है, मुस्तफा आने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे आका अलैहि तहियत व सलाम जब आप तशरीफ लाए तो छोटी छोटी बच्चियां अपने हाथ में दफ ले करके बजा रही थी और कह रही थी, तलअल बदरु अलैना बिन सनियातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। छोटी छोटी बच्चियां पढ़ रही थी, बच्चे खुश थे, नबी तशरीफ लाने वाले हैं, औरतें खुश थी, नबी तशरीफ लाने वाले हैं, जवान खुश थे, नबी तशरीफ लाने वाले हैं। अरब का बच्चा खुश था, मदीने का बच्चा खुश था, नबी तशरीफ लाने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। जब मेरे सरकार मदीना तशरीफ पहुंचे, तशरीफ ले गए, आका जब पहुंचने वाले हैं, हर आशिक की तमन्ना है सरकार मेरे घर पे तशरीफ ले आए, सरकार मेरे घर पे कदम रंजा हो जाए, सरकार मेरे घर पे करम फरमा दे। अल्लाहु अकबर। हर आशिक की तमन्ना यही है, सरकार मेरे घर पे आ जाए, सरकार मेरे घर पे आ जाए, सरकार मेरे घर पे आ जाए। लेकिन ए मेरे दोस्तों, मेरे आका अगर किसी एक के घर पे चले जाते तो दिल शिकनी होती, दिल टूट जाता। मेरे सरकार तो पूरी कायनात के लिए रहमत बन करके आए थे, मेरे सरकार पूरी कायनात के लिए रहमत बन करके आए थे। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। अब अगर मुस्तफा किसी एक के घर पे क़याम फरमाते तो दूसरे का दिल टूट जाता। आका ने इरशाद फरमाया, आए लोगों, मेरी ऊँटनी की नकेल को छोड़ दो, मेरी ऊँटनी जहाँ पे बैठ
बैठ जाए वही मेरी आखिरी क़याम गाह है। अल्लाह अकबर। जब ऊँटनी की नकेल को छोड़ दिया गया, अल्लाह अकबर, तो वो ऊँटनी जाती है अबू अय्यूब अंसारी के घर में बैठ जाती है। और अबू अय्यूब अंसारी का घर वो घर था कि नबी की पैदाइश से 1000 साल पहले तुब्बा अव्वल हिमेरी ने बनवाया था। तुब्बा अव्वल हिमेरी ने बनवाया था। जब भी मुस्तफा आएंगे इसी में क़याम फरमाएंगे, जब भी मुस्तफा आएंगे इसी में क़याम पसीर होंगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहि तहियत व सलाम उसी घर में तशरीफ ले जाते हैं। अब आशिकों का हुजूम है, आशिकाने मुस्तफा झूक दर झूक आ रहे हैं, उबरते हुए सैलाब की तरह आ रहे हैं। मदीने के गलियों में शोर हो गया है, नबी कौनैन तशरीफ ला चुके हैं, आका की आमद हो चुकी है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का जो घर जो बना हुआ था हजरात 2 मंजिला था, एक नीचे वाला हिस्सा एक ऊपर वाला हिस्सा। तो जो नीचे वाला हिस्सा था हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने उसमें मुस्तफा को ठहरा दिया ताकि जब कोई आशिक मिलने के लिए आए तो तकलीफ ना होने पाए, मुस्तफा से मुलाकात कर ले, मुस्तफा से शर्फ़े लिक़ा हासिल कर ले, मुस्तफा से मुलाकात का शरफ हासिल कर ले। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अब्दुल सलाम साहब क़िबला रज़वी जामई शायर इस्लाम जनाब ज़ाकिर इस्माइली बहराइच शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके मेहमान करीब हो रहे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए शायर ले सुन्नत जनाब ज़ाकिर इस्माइली बहुत ही अच्छी आवाज़ के मालिक हैं, वो तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर के बाद उन्हें आप समाअत फरमाएंगे। हजरात, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, हर आशिक मुस्तफ़ा से मुलाकात के लिए आ रहा है, हर शख्स नबी से मुलाकात के लिए आ रहा है। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने जो उनका घर था निचला हिस्सा मुस्तफ़ा के लिए खास कर दिया। जब रात का वक्त था, जब सोने का वक्त आया, सर्दी का मौसम था, जाड़े का मौसम था, हजरत अबू अय्यूब अंसारी और उनकी अहलिया मोहतरमा दूसरी मंजिल पे चले जाते हैं और वहीं पे बिस्तर डाल देते हैं ताकि आका को तकलीफ ना होने पाए। अल्लाह अकबर। अब ये दोनों लोग जब क़याम करने लगे तो मिट्टी का एक घड़ा था, एक सुराही रखी हुई थी, वो सुराही टूट जाती है, उसका पानी गिरने लगता है। अब इन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो पानी नीचे टपक करके पहुंच जाए मुस्तफा जाने रहमत तक, मुस्तफा को तकलीफ हो जाए, मुस्तफा को तकलीफ हो जाए, मुस्तफा के आराम में खलल ना पड़ने आए। अल्लाह अकबर। पूरी रात मियाँ बीवी ठिठुरते रहे, सिकुड़ते रहे बगैर मुस्तफा को तकलीफ ना होने पाए। आपने अपनी रजाई को पानी में डाल दिया, पूरा पानी रजाई में जज्ब हो जाता है, पूरी रात ऐसे ही बैठे रहते हैं मगर मुस्तफा के आराम में खलल पड़ जाए ये उन्हें गवारा नहीं है, ये आशिक को गवारा नहीं है। अल्लाह अकबर। आशिक ऐसे होते हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले ऐसे होते हैं। अल्लाह अकबर। आओ जरा मैं तारीख का वर्क आपके सामने उलटता चलूं। खालिद इब्ने वलीद तो कौन नहीं जानता है, हजरत खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये नबी के मुक़द्दस सहाबी हैं जिन्हें सैफुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह की तलवार कहा जाता है। अल्लाह अकबर। एक जंग में हजरत खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लड़ रहे थे, लड़ते 10 तलवारें आप तोड़ दिया करते हैं। हजरात, तलवारें तोड़ना अरब में बहादुरी की अलामत थी। जब तलवारें टूट जाया करती हैं, अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए खालिद इब्ने वलीद तुम सैफुल्लाह हो, ए खालिद इब्ने वलीद तुम सैफुल्लाह हो। अल्लाह अकबर। हजरत खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो आपकी वो ज़ाते गिरामी है, मगर जरा नबी की मोहब्बत देखो, नबी का इश्क देखो आपके सीने में किस तरह है। और आज भी मैं आपको पैगाम दे करके जाना चाहता हूँ, ऐ लोगों अपने दिल में नबी की मोहब्बत बसा लो, खुदा की कसम दुनिया के किसी कोने में जाओगे नाकामयाब नहीं होगे बल्कि कामयाब होकर के आओगे। बस सच्चा इश्क अपने नबी से रखो, सच्चा प्यार अपने नबी से रखो, और जो भी नबी से सच्चा इश्क रखेगा वो झूठ नहीं बोलेगा, जो भी सच्चा इश्क अपने नबी से रखेगा वो गीबत नहीं करेगा, जो भी सच्चा इश्क अपने नबी से रखेगा वो बुराई नहीं करेगा, वो उलमा से हसद नहीं करेगा, उलमा की गीबत नहीं करेगा, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहेगा, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक की दौलत बांटेगा।
लोगों के दिलों को दूर नहीं करेगा, लोगों के दिलों को करीब करेगा, मदारिस से मोहब्बत करेगा, मसाजिद से मोहब्बत करेगा, खानकाहों से मोहब्बत करेगा, बुजुर्गों से मोहब्बत करेगा। जिसके दिल में भी नबी की मोहब्बत होगी वो नबी के गद्दारों से दोस्ती नहीं करेगा, याराना नहीं करेगा, दोस्ती नहीं करेगा, दोस्ती नहीं काटेगा। क्योंकि मेरे पीरो मुर्शिद सरकारे ताजुश्शरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके इल्म का कोई जवाब नहीं, जिनके अमल का कोई जवाब नहीं, जिनके तक़वे का कोई जवाब नहीं, सरकारे ताजुश्शरिया फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, और नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, और पितर मादर बेरादर जानो माल उन पर मोहब्बत फिदा कर दे, पितर मादर बेरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। नारे रिसालत इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दें। और डॉक्टर अकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और हमें करनी है शहंशाह आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। यही खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाह अकबर, जब तारीख पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा आपके बदन पे कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जिस पे जख्म न लगा हो। कहीं नेज़े का जख्म है, कहीं फाले का जख्म है, कहीं तीरों का जख्म है, जख्म से पूरा बदन छलनी है। अल्लाह अकबर। लेकिन जिस मैदान में हजरत खालिद इब्ने वलीद गए, आपने कामयाबी का झंडा नस्ब कर दिया, कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। लोगों ने पूछा था ए खालिद इब्ने वलीद कामयाबी कैसे मिलती है, तो आपने फरमाया था आई लोगों सुनो सुनो, तुम क्या सोचते हो खालिद इब्ने वलीद को जो कामयाबी मिलती है वो तीरों की बुनियाद पे मिलती है, तलवारों की बुनियाद पे मिलती है, भालों की बुनियाद पे मिलती है, नेज़ों की बुनियाद पे मिलती है। अरे नहीं नहीं, खालिद इब्ने वलीद के दिल में नबी से ऐसा इश्क है, ऐसा इश्क है कि मैंने अपने टोपी में मुस्तफा का बाल छुपा रखा है। खालिद इब्ने वलीद जिस मैदान में जाता है कामयाबी के झंडे गाड़ दिया करता है, कामयाबी के झंडे नस्ब कर दिया करता है। अल्लाह अकबर। यही तो वजह है, यही हजरत खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। एक मैदान में जाते हैं, अल्लाह अकबर, जंग बड़ी तेजी पर है, लड़ाई हो रही है, और आलम जंग में हजरत खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी टोपी आपके सरे मुबारक से गिर जाती है। अल्लाह अकबर। बेतहाशा आप उस टोपी की तरफ दौड़ जाते हैं। अल्लाह अकबर। अगर ये कोई आम फौजी करता तब भी कोई हैरत की बात नहीं थी। हजरत खालिद इब्ने वलीद तो फौज के कमांडर थे। हजरत खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सिपाह सालार थे, लश्कर के कमांडर थे। वो दौड़ करके टोपी की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो लोग देख रहे हैं, हैरत की नजरों से देख रहे हैं, और कह रहे हैं ए खालिद इब्ने वलीद, ये क्या बात है, तुम तो है अपनी जान बचाने की फिक्र नहीं कर रहे हो। आपकी जान 1000 जानों से ज्यादा कीमती है, आपकी जान तो 1000 जानों से ज्यादा कीमती है। आप अपनी जान बचाने की फिक्र नहीं कर रहे हो, आप टोपी की टोपी को बचाने की फिक्र कर रहे हो। तो खुदा की कसम, खालिद इब्ने वलीद ने कहा था तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है, तुम ये सोचते हो खालिद इब्ने वलीद जो जंग जीतता है अपनी ताकत की बुनियाद पे, अपनी फौज की बुनियाद पे, अपनी बहादुरी की बुनियाद पे, तीर और तलवार की बुनियाद पे नहीं, नहीं। खालिद इब्ने वलीद ने जो जंगें जीती हैं वो सिर्फ इस बुनियाद पे कि मेरी टोपी में मुस्तफा के बाले मुबारक छिले हुए हैं, मोए मुबारक छिले हुए हैं। खालिद इब्ने वलीद को जो भी कामयाबी मिली है मुस्तफा के मोए मुबारक के सत्ते में मिली है, मुस्तफा के मोए मुबारक के बरकत से मिली है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तो नबी से जो मोहब्बत करता है वो ऐसा आशिक हुआ करता है, अपनी जान की परवाह नहीं करता है, अपनी जान की बाजी लगा दिया करता है, अपने जान की परवाह नहीं किया करता है। जब दौलत की बारी आती है दौलत लुटा दिया करता है, माल की बारी आती है माल लुटा दिया करता है, जान की बारी आती है जान
लुटा दिया करता है। अगर बारी आती है औलाद की, औलाद को कुर्बान कर दिया करता है और दुनिया को यह ज़हनो फिक्र देना चाहता है। आए लोगों सुनो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो मान मांगो तो मान देंगे, मगर ये हमसे न होगा हरगिज। नबी का जाहो जलाल देंगे, मगर ये हमसे न होगा हरगिज। नबी का जाहो जलाल दे दे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को शरीयत मुस्तफ़ा पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नबी से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम रसूल से मोहब्बत करो, मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा, अपना महबूब बंदा बना लेगा। अल्लाह ताला हमको आपको शरीयत मुस्तफ़ा पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बयान में कोई कमी हो, कोई कोताही हो, अल्लाह इसे माफ फरमाए। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। कतरे वहाबियत हो कि ऐवान नजदियत, सब तहस नहस हो कि धमाका रजा का है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।